helium atom has an atomic mass of helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. Helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. Full stop. How many neutrons does it have? How many neutrons? How many neutrons does it have? Helium atom has an atomic mass of 4u. Atomic mass को हम बोल देते हैं A. तो atomic mass कितना दे रखा है? 4u. ठीक है. और फिर दे रखा है and 2 protons in its nucleus. 2 protons in its nucleus का मतलब number of protons होता है हमारा atomic number Z. तो Z कितना दे रखा है? 2 के बराबर दे रखा है. अच्छा, how many neutrons does it have? तो हम ये कहेंगे A is equal to Z plus M. M is equal to A minus Z. तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 2. कैपिटल Z होता है कि स्मॉल Z होता है? कैपिटल. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स. Arrangement of electrons in the atoms. Arrangement of electrons in the atoms. इसमें लिखिएगा the arrangement of electrons in various shells or energy levels. The arrangement of electrons in the various shells or energy levels. The arrangement of electrons in the various shells or energy levels. The arrangement of electrons in the various shells or energy levels of an atom of the element is known as electronic configuration of the element. Is known as electronic configuration. Is known as electronic configuration of the element. Is known as electronic configuration of the element. उसके बाद
उसके बाद एक पॉइंट नोट करिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड maximum number of electrons maximum number of electrons which can be accommodated accommodated का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं. Maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom in any energy level the maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom is given by any energy level of the atom is in any energy level of the atom is given by 2n square. Is given by 2n square, where n is the number of that energy level. Where n is the number of that energy level. Where n is the number of energy, n is the number of that energy level. For first energy level, और फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, तो पहले एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन maximum number of electrons in first energy level is equal to 2n square, यानी कि 2 into 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2, ठीक है. फॉर सेकंड एनर्जी लेवल n is equal to 2. यहाँ लिखेंगे maximum number of electrons in maximum number of electrons in second energy level is equal to 2 into 2 का स्क्वायर, मतलब 8. और थर्ड एनर्जी लेवल for third energy level n is equal to 3. तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एनर्जी लेवल टू इंटू 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 15. तो थर्ड एनर्जी लेवल तक हो गया. फिर लिखे फॉर फोर्थ एनर्जी लेवल. और फोर्थ एनर्जी लेवल n is equal to 4. Maximum number of electrons in fourth energy level is equal to 2 into 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 32, ठीक है. इसके बाद
सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट पर स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन बनता है। सेकंड पॉइंट, देखिए इसमें है द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons. Cannot accommodate more than the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons, comma, even if it has the capacity 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 to accommodate more electrons. इसका रीज़न लिखेंगे। क्या होता है कि अब ना हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला अब हम कर रहे हैं, ये टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा अब अलग अलग एटम्स का। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम ये जानते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आता है, फिर 18 आता है और फिर लास्ट में चौथे शेल में 32 आते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम पहले शेल में 2 करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, फिर चौथे में भी 8, ऐसे करेंगे हम। तो वही रीज़न है यहाँ पर द आउटर मोस्ट शेल, जो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम का वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो रखेगा ही नहीं अपने पास, अकोमोडेट ही नहीं करेगा। इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, चाहे उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की कैपेसिटी हो तब भी वो 8 से ज़्यादा नहीं रखेगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिएगा, रीज़न है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स this is due to the fact that having this is due to the fact that having 8 electrons due to the fact that having 8 electrons in the outermost shell, due to the fact that having 8 electrons in the having 8 electrons in the outermost shell makes the atoms very stable. Makes the atoms very stable. Full stop. If, however, the outermost shell नहीं, बस बहुत है, इतना ही रीज़न बहुत है। मेक्स द एटम्स वेरी स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो लेता ही नहीं है, क्योंकि सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा का पूरा एटम जो है एज अ होल वो स्टेबल होना चाहता है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन पर ही स्टेबिलिटी मिल जाती है तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आते ही नहीं है, अकोमोडेट ही नहीं होते। तीसरा रीज़न लिखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वाला, इसमें है electrons in an atom do not occupy a new shell
electrons in an atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons. Unless all the inner shells are completely filled with electrons. इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X. Write the electronic configuration of an element X whose atomic number is 12. Write the electronic configuration of an element capital X whose atomic number is 12. तो यहाँ हम ये कहेंगे atomic number is equal to 12. तो number of protons is generally equal to number of electrons. तो ये भी 12 हो गया, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू एट टू, पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरी शेल में 2 + 8 10 हो गया. तो कितने बचे? 12 में से जब 10 गया तो 2 ही बचे. तो तीसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है write the distribution of electrons write the distribution of electrons write the distribution of electrons in an atom of element write the distribution of electrons in an atom of element whose atomic number
whose atomic number is 18. Whose atomic number is 18. 288. Full stop. What is special about the outermost electron shell? What is this square? What is special about the outermost electron shell? What is special about the outermost electron shell or valence shell of the atom of this element? वहाँ पे देखिए इसमें पूछ रहा है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 18. तो अगर एटॉमिक नंबर 18 दे रखा है एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही 18 के इक्वल हो जाएंगे. क्या कर रहे हो इसमें? टाइम सेट कर रहे हो? Atomic number 18, number of protons is equal to number of electrons is equal to 18. Therefore, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 288. तो 2 प्लस 8 10 हो गया और 10 प्लस 8 18 हो गया. तो 288 एंड व्हाट इज स्पेशल? तो हम ये कहेंगे कि इट हैज completely filled valence shell. ठीक है ना? ये वैलेंस शेल है 8 completely filled है. ठीक है, तो ये इसमें स्पेशल है. एक क्वेश्चन और नोट करें. एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13. कौन सा हुआ क्लियर? हैज एटॉमिक नंबर 13. एल्यूमिनियम. ठीक है. एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13. फुल स्टॉप. An element has atomic number 13 and an atomic mass of 27. इसी में लिखेंगे and an atomic mass of 27. Full stop. अब A part है how many electrons are there in each atom of the element.
how many electrons are there? How many electrons are there in each atom of the element? In each atom of the element. B part है, how are these electrons distributed in the various energy levels? How are these electrons distributed in the various energy levels? ठीक है, तो ये किस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा. An element has atomic number 13 and an atomic mass of 27. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है, इसका मतलब और ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. तो ए पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट. तो ए पार्ट का आंसर कितना है? 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 13. अब बी पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ आर दीज इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस एनर्जी लेवल्स, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं. तो how are these electrons distributed in the various energy levels? Distributed in the various energy levels मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है आपसे. तो 2, 8, 3. उसके बाद लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. इसमें नोट कीजिएगा द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट the capacity of an atom of an element to form chemical bonds
The capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as its valency. Valency of an atom. Is known as its valency. फिर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी. Type of valency. There are two types of valency. There are two types of valency: electrovalency and covalency. There are two types of valency: electrovalency and covalency. हम नोट करेंगे, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी तो दो तरीके की वैलेंसी होती है. किसी भी एटम की बॉन्डिंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, किसी भी एटम की बॉन्डिंग करने की, केमिकल बॉन्ड्स बनाने की जो एबिलिटी होती है, उसी को हम वैलेंसी बोल देते हैं. हम इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, देखिए क्या होता है कि कई बार क्या है कि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. कई बार क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तब जो वैलेंसी बनती है, या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तब जो वैलेंसी बनती है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. और कोवैलेंसी का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तब जो वैलेंसी बनती है उसको बोलते हैं कोवैलेंसी. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में नोट कीजिएगा इसकी डेफिनेशन: द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम. The number of electrons lost or gained, the number of electrons lost or gained by one atom of an element the number of electrons lost or gained by one atom of an element to achieve the nearest inert gas Electron configuration. nearest inert gas electron configuration is known as its electrovalency. Is known as its electrovalency. अब हमने ना कुछ एलिमेंट्स देखे थे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी वैलेंसी हमने देखी थी. तो ये जो शब्द है इसको याद रखना: नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब वैसे तो हम जानते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो सब स्टेबल होना चाहते हैं. तो स्टेबल होना चाहना जो है वो यही है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं कोई भी एलिमेंट. जैसे मान लीजिए जैसे मान लो हमने ना इस तरह से ये लिखा कि जो शुरुआत के जो एलिमेंट्स थे, मैंने आई थिंक 15 या 20 एलिमेंट्स आपको बताए थे.
तो जैसे मान लीजिए ये लिखा था हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स लिखे थे। अब इसमें आप ना ये देखिएगा कि इसमें इनर्ट गैस कौन सी है। इनर्ट गैस का मतलब जिसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो आप ये देखो कि जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 10। तो 2,8। अब अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये होता है 281। तो ये सोडियम जो है ना, ये अपने नियरेस्ट इसके बराबर में जो ये इनर्ट गैस है, सोडियम इसके जैसा बनना चाहेगा। तो वो बनेगा कैसे? आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो जब इसने आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन्स तो नहीं ना। तो प्रोटॉन्स उसके पास कितने रहे? 11। प्रोटॉन्स तो 11 के 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया क्योंकि ये नियॉन जैसा बनना चाहता था। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए इसके पास? 10। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी? 1+। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा है। अब अगर मान लो मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो ये क्या हो गया? 2,7। अब ये भी नियॉन जैसा बनना चाहता है। तो ये क्या करेगा? ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस केस में क्या होगा कि प्रोटॉन्स तो वही जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन तो 9 के 9 ही रहे। इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए ना, 2+7 9 तो थे, एक और ले लिया 10 हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से एक ज़्यादा हो गया। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 माइनस। इसकी वैलेंसी होगी 1-। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई वैलेंसी निकालने का, इलेक्ट्रो वैलेंसी निकालने का ये तरीका है, इधर बाई डोनेशन और बाई एक्सेप्टेंस, इस तरीके से। तो करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में सीखने के लिए। सर नोबल गैसेस का हमने ये जो इनर्ट गैस है ना, इसी को नोबल गैस कहते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल जो है फिल्ड होते हैं। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग।